एक्सक्यूज मी सर, आपका पॉइंटर मूव कर रहा है लेकिन आपका माइक म्यूट है. Thank you for providing me the assistance. Okay, so now I hope audible. जी सर, नाउ यूर ऑडिबल. Yes. Okay, so I was talking that traditional software development, actually I'm going to explain a special kind of architecture. Since in today's lectures, this introductory lecture, I am explaining various concepts of software architecture. And in the same context, there is a special kind of architecture which we call as model-driven architecture. So now I am going to explain the concept of model-driven architecture. First of all, let's see a traditional software development life cycle. The software development process, as we know it today, is often driven by low-level design and coding. What happens in traditional software development, we perform the process of requirement engineering, and we develop some documents, and those documents are mostly textual. आप डॉक्यूमेंट्स SRS बनाते हैं और एक मोटा सा डॉक्यूमेंट बन जाता है. Then second step of analysis is performed, and based on those requirements, then another document is created, and it is generally combination of some diagrams as well as text. And in the third step, we start a low-level design, and after design, you will see mostly diagrams because UML is a kind of industry standard today, and some text to explain those diagrams. And then the process of coding starts. Once the process of coding starts, we get a code, and then code is delivered for testing. The process of testing starts. Again, a tested code is delivered, and then tested code is deployed. Okay, now if there is some modification is required in the code. Now, software engineering teaches us that we should go back to the requirements, we should adjust those requirements, and we should perform all those steps. And why we should perform these tests? To maintain the traceability, so that we should know that which particular requirement is being implemented by which particular code artifact. So, but actually what happens once all this process is performed, and if some coding changes in codes are required, what programmers does, they just keep on changing the code based on testing. They deploy, they find errors, then they modify the code, they perform some testing, then deploy. So what happens that our traditional life cycle is actually on ground is not implemented. Rather, a shortcut it starts. And what happens after some time that this code remains untraceable from those documents. डिज़ाइन साथ लिंकेज खत्म हो जाती है कोड की. डिज़ाइन कुछ और होता है, कोड अल्टीमेटली डिप्लॉयड कुछ और होता है. सेम इज द केस विद एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट. सो इसका प्रॉब्लम क्या होता है? इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब लेटर ऑन सॉफ्टवेयर आपके डिप्लॉय हो जाते हैं और लेटर ऑन आपको कोई चेंजेस करनी पड़े, तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो आपका एक्चुअल कोड उसके साथ लिंक ही नहीं होता. यू कांट ट्रेस योर कोड फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने इनिशियली डेवलप किए होते हैं उससे. और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है आपकी एप्लीकेशन की वो बढ़ जाती है. मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मेंटेनेंस फेज में वो सॉफ्टवेयर इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन.
तो ये इसकी प्रॉब्लम है. The documents and corresponding diagrams created in the first three phases rapidly lose their value as soon as coding starts. When a system is changed over time, the distance between code and the text and diagrams produced in the first three phases becomes larger. ठीक है जी, तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है. क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, बुक हमें क्या कहती है, ऑन ग्राउंड क्या कर रहे होते हैं हम. Now coming on to the MDA's development life cycle. So one of the solution to this problem is the developing software based on MDA. इसमें क्या होता है, इसमें मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं. Within MDA, the software development process is driven by the activity of modeling your software system. The developed artifacts are formal models. Formal model किसको कहते हैं हम? Models that can be understood by computer. Those are called formal models. The following models are the core of MDA. PIM, which stands for Platform Independent Models. PSM, which stands for Platform Specific Models. And then it comes the programming language. And what happens here? आप requirement लेते हैं, requirements का process करते हैं, तो mostly वो textual form में होता है. But after once you do analysis, after analysis you create a model, and we call this model as platform independent model. Platform independent model हम इसलिए कहते हैं कि this model is we don't mention any platform or technology in PIM. इसमें बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं. जैसे हमने, अगर आपने पढ़ा हो कि जी हम डोमेन मॉडल बनाते हैं, क्लास डायग्राम से डोमेन मॉडल बनाते हैं, तो डोमेन मॉडल में हम डोमेन कॉन्सेप्ट्स डालते हैं. डोमेन कॉन्सेप्ट्स में हर डोमेन कॉन्सेप्ट की एक क्लास बनाते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर, अगर टीचिंग डोमेन है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डोमेन है, तो डोमेन कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं? टीचर कुड बी अ डोमेन कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट, कोर्स, these are domain concepts. So these domain concepts are created in domain models. तो MDA में हम domain model जो बनाते हैं, those are created in platform independent models. उसमें सिर्फ domain concept होते हैं, platform या technological के concept, technology concepts नहीं होते हैं. So these are called platform independent models. After then we do some low level design, and then we generate platform specific models. इनको हम generate करते हैं. We write some sort of transformations, and then we generate platform specific models. यहाँ पे low level design में we take the decision of the platform कि कौन सा platform हमने use करना है. For example हम कहते हैं JEE architecture use करना है, या .NET use करना है, या कोई और framework use करना है. तो फिर उसके मुताबिक हमारा डिज़ाइन होता है, और उसके मुताबिक हम ट्रांसफॉर्मेशन करके टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक एक मॉडल बनाते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल होता है. उस मॉडल में ये कैपेबिलिटी होती है कि हम एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म का कोड जनरेट कर सकते हैं हम. तो कोड जनरेशन एक्टिविटी के बाद कोड जनरेट होता है, देन यू परफॉर्म टेस्टिंग. हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल से टेस्ट कोड भी जनरेट कर सकते हैं. और उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट होती है. लेकिन जब डिप्लॉयमेंट में अगर कोई चेंजेस करनी होती हैं, तो वी स्ट्रेट अवे कम एंड चेंज, आफ्टर एनालिसिस चेंज PIM. रेस्ट ऑल इज जनरेटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आवर ऑल starting from PIM, PSM code, these all remain in sync with each other. और अल्टीमेटली फिर फ़ायदा इसका होगा हमें ड्यूरिंग मेंटेनेंस पीरियड, कि मेंटेनेंस में जब करनी होगी तो हमें वो हमारी एनालिसिस भी हमारे पास ही होगी, और उसी में जाके हम चेंजेस करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर. एनी क्वेश्चन एट दिस स्लाइड? सर ये डोमेन मॉडल में हम बैकएंड को डिफाइन करते हैं? नहीं, डोमेन मॉडल बेसिकली होता है, उसमें हम डोमेन कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया
कि यूनिवर्सिटी डोमेन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें सबसे पहला काम हमने एनालिसिस के बाद हमने एक डोमेन मॉडल बनाना होता है। जनरली डोमेन मॉडल इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ क्लास डायग्राम। इसकी आपने जनरली कोई बैचलर लेवल पे कोई प्रैक्टिस वगैरह भी की होगी जी। ये तो जनरली हम जो क्लास डायग्राम के एग्जांपल्स भी देखते हैं तो जनरली हम वो डोमेन मॉडल ही की एग्जांपल्स होती हैं जी। टीचर इज सर रिलेटेड टू सर तो ये क्लास डायग्राम जो है, तो सर यही तो बैकएंड पे हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, रिलेशनशिप बना के जो डेटाबेस में हम स्कीमा डेवलप करते हैं। हाँ बैकएंड पे भी करते हैं, मैं लेकिन सर वो तो इस सेंस में बात कर रहा था आपसे। अब वो मैं अभी ये डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करूंगा ना, तो फिर आपको क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप होल्ड करके रखें, ठीक है? ये ओके आपको आगे समझ आएगा, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इस एट दिस स्टेज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ advantage of model driven architecture and broader concept of various kinds of models like PIM and PSM etc. ठीक है जी, और अभी आपको अगली स्लाइड्स पे इसका जवाब मिल जाएगा आपका। Any other question? चलें आगे चलते हैं। So first of all, let me explain what is a model. Here, this diagram is indicating a conceptual block representing a model. We say that model is written in a language. क्योंकि मॉडल बनाना है आपने तो कोई खास लैंग्वेज में बनाना चाहिए। क्यों लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में बनाना चाहिए? क्योंकि लैंग्वेज अगर फॉर्मल होगी तो इट विल बी वी कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आप क्लास डायग्राम पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, क्या ख्याल है? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बट दैट विल नॉट बी अ क्लास डायग्राम, दैट विल बी अ ड्राइंग। Why? Because the semantics and syntax of those diagram cannot be understood by the paint. MS पेंट उसको नहीं समझता। MS पेंट को वो क्लास नहीं नज़र आ रही, उसको वो डब्बा नज़र आ रहा है, उसको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। ठीक हो गया? तो इसलिए जो ग्राफिकल एडिटर्स होते हैं दोज आर नॉट दी, जो आपके ड्राइंग एडिटर्स होते हैं, ड्राइंग एडिटर्स आर नॉट दी मॉडल एडिटर्स। मॉडल एडिटर्स जो होते हैं वो मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसकी सिमेंटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जैसे यूएमएल मॉडल के अंदर, यूएमएल एडिटर में या यूएमएल टूल के अंदर जब आप क्लास डायग्राम बनाते हैं तो यूएमएल टूल को पता होता है कि ये क्लास है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके ऑपरेशंस हैं और ये इसकी एसोसिएशंस हैं। ये सारा वो बैकएंड पे पूरा उसके सिंटैक्स सिमेंटिक्स वो समझ रहा होता है, इसीलिए आपको कोई गलत किस्म के कनेक्शन करने ही नहीं देगा आपको। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपने पैकेज है, पैकेज के अंदर आप एट्रीब्यूट नहीं डाल सकते हैं, वो आपको डालने नहीं देगा। लेकिन पेंट के अंदर पैकेज बनाएंगे तो उसके अंदर जो मर्जी डालते रहें आप, पैकेज एट्रीब्यूट डाल दें, ऑपरेशन डाल दें, ठीक है? तो द मैसेज ऑफ दिस स्लाइड इज दैट मॉडल is written in a formal language and it describes a system. Model describes a system. Let's see the formal wording. A model is a description of part of a system written in a well-defined language. A well-defined language is a language with a well-defined syntax and meaning, that is semantics, which is suitable for automated interpretation by a computer. Source code is also kind of textual PSM. ठीक है, सोर्स कोड भी एक तरह का PSM है, क्योंकि सोर्स कोड से अब जब सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल खुद एग्जीक्यूट नहीं करता, सोर्स कोड ने भी जब तक कंपाइल नहीं होगा उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए सोर्स कोड भी एक एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट होता है, तो इसलिए हम उसको भी एक तरह का टेक्सचुअल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल कह सकते हैं, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंपाइलर। ओके जी, तो एक तो मॉडल का कॉन्सेप्ट देखा हमने, दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन इज द ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ टारगेट मॉडल फ्रॉम सोर्स मॉडल अकॉर्डिंग टू अ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ गया टारगेट मॉडल का, सोर्स मॉडल का और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन का।
What is transformation definition? Transformation definition is a set of transformation rules that together describe how model in a source language can be transformed into a model in the target language. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन में. तो रूल्स क्या होते हैं? A transformation rule is a description of how one or more constructs in a source language can be transformed into one or more construct in the target language. तो ये 3 तरह की डेफिनेशन है. So what we say in the end, that in order for transformation specification to be applied over and over again, the transformation specification relates constructs from source language to the construct in the target language. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? हम मैपिंग करते हैं सोर्स लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स की टारगेट लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के साथ मैपिंग करते हैं और हम बताते हैं जी ये कंस्ट्रक्ट फ्ला टाइप का कॉन्सेप्ट फ्ला टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ जनरेट होगा या लिंक होगा. We can, for example, define transformation definition from UML to C#, which describes which C# construct can be generated from which UML construct. The most important characteristic of transformation definition is that transformation should preserve meaning between source and target model. ये बहुत important concept है. मीनिंग, पहली बात तो है कि मीनिंग्स प्रिजर्व कब होंगे? जब मीनिंग मॉडल्स के अंदर, सोर्स मॉडल में भी तो मीनिंग प्रिजर्व हो ना, और उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपना सिमेंटिक्स को प्रिजर्व करने की सोर्स मॉडल में, और टारगेट मॉडल में भी सिमेंटिक्स प्रिजर्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो फिर पहले तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिर ओनली देन वी कैन प्रिजर्व द मीनिंग while we are doing the transformation. Any question is this particular slide? हमने ये 2 स्लाइड्स थी ट्रांसफॉर्मेशन की. पहले स्लाइड में कुछ डेफिनेशंस थी 2-3, और फिर यहाँ पे तो बेसिक मैसेज जो है इस स्लाइड का ये है कि हम सोर्स मॉडल में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको टारगेट मॉडल के कॉन्सेप्ट के साथ मैप करेंगे, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. Any question? No sir. चलें जी आगे देखते हैं. थोड़ा सा ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. सो दिस इज बेसिक MDA फ्रेमवर्क. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक लैंग्वेज है, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ UML, और यहाँ पे एक लैंग्वेज है, वी टेक एग्जांपल ऑफ C#, और एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन है. अब हम PIM बनाएंगे तो हम कहते हैं जी PIM इज रिटन इन UML. ठीक है जी. और फिर हम एक PSM जनरेट करना चाहते हैं विच शुड बी रिटन इन C#. तो अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल यूज करना है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन को यूज करेगा. तो डेफिनेशन जो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, उसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो UML के होंगे और C# के होंगे, और इस डेफिनेशन में मैपिंग लिखी होगी कि UML, for example, class diagram will be mapped or transformed to C# class. UML attribute will be mapped to C# field. UML operation will be mapped to या transformed to C# method. इस तरह करके हमने कुछ लिखा हुआ होगा एक फॉर्मल लैंग्वेज में, और वो फिर अब हम PIM बनाते हैं, उसके अंदर 4 क्लासेस हैं. तो अब हमने लिखा हुआ है कि जी हर क्लास को, UML की क्लास को C# की क्लास बनाना है. तो अगर 4 क्लासेस इस PIM में है, we will get 4 classes of PSM which is depicting C# classes. So this is how transformations are done.
So the vision promulgated by MDA is that you should take a domain model, we call it PIM, off the shelf. For example, inventory model developed in UML. Then what we do, we subset the model as necessary. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री मॉडल बहुत ही कंप्रेहेंसिव सा बना हुआ हो, ऑफ द शेल्फ आप लेते हैं किसी स्पेशलाइज फर्म से, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हों, लेकिन अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सबसेट करना है कि हमने जो इन्वेंट्री मॉडल की चीज़ें यूज़ करनी है या फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है या कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं, उनका हम सबसेट बना लेंगे. Then what we'll do, take models of implementation technologies. For example, हम कहते हैं जी हमने J2E एंड टियर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, तो उसका PSM हम परचेज करेंगे ऑफ द शेल्फ या हमने खुद बनाया वो होगा. Then we will describe transformation as how the model are to be linked. उनके उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग लिखी हुई होंगी PIM और PSM की दरमियान में. Then we will generate the system or hence models and transformations are the corporate assets in MDA. यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर को यूज़ कर रही है अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए होंगे या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस लिखी हुई होंगी, दोज आर गोइंग टू बी द कॉर्पोरेट एसेट्स, देयर कॉर्पोरेट एसेट्स. ठीक है, वो अगर आप उनके चोरी हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं, हैक हो जाएं, तो समझें कि कंपनी गई. ओके, तो दिस इज द विजन विच इज promulgated by MDA. अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, जस्ट मैसेज ऑफ दिस स्लाइड इज दैट इट इज़ अ J2E प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन. आप देखें इसमें J2E में जो प्लेटफॉर्म है विच इज़ फ्रॉम सन, इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई हैं. आगे आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं. It has container concept of containers. There is applet container, there is applet client, app client container, web container, EJB container. बहुत से containers के concepts हैं. JSP, servlet, various technologies, various APIs have been developed. तो अगर आपने एक full fledged J2E प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जिसमें आपने 3 tier एप्लीकेशन बनानी है, बीच में डेटाबेसेस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें कनेक्टर्स भी हैं, HTTP कनेक्टर्स हैं, RMI कनेक्शंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, तो द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए जो MDA आर्किटेक्चर है, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ रिसर्च कि कैसे हम इफेक्टिवली हम ऐसे टूल्स बनाएं जिससे हम कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें. Just few trivial examples to further explain this concept. For example, there is a concept of in MDA there is concept of model to model transformation. यहाँ पे लिखा हुआ है model to model transformation, and there is concept of model to text या मॉडल टू कोड ट्रांसफॉर्मेशन. तो फॉर एग्जांपल अब ये कैसे एक्टिविटी हो रही होती है, तो हम सबसे पहले PIM बनाते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल बनाते हैं. जनरली वी यूज़ UML प्रोफाइल्स बनाते हैं, उनके ज़रिए PIM बनाते हैं. और अब फॉर एग्जांपल इट विल बी सम स्पेसिफिक डोमेन, फॉर एग्जांपल हेल्थ डोमेन हो सकती है या बैंकिंग डोमेन हो सकती है, तो उसकी आप PIM सबसे पहले बनाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्म, अगर हमने फॉर एग्जांपल मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोड जनरेट करना है, तो फॉर एग्जांपल हम XML मॉडल बना सकते हैं, J2E मॉडल, कोरबा मॉडल बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो हम क्या करेंगे कि हमने अगर XML कोड जनरेट करना है तो हम सबसे पहले XML PSM जनरेट करेंगे. वो कैसे जनरेट करेंगे? वी विल राइट
मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह अगर हमने J2E या जावा कोड जनरेट करना है तो हम सबसे पहले J2E का PSM जनरेट करेंगे बाय राइटिंग मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन दिस PIM एंड दिस PSM। इसी तरह कोरबा मॉडल जनरेट करना है हमने, तो हम मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पहले कोरबा PSM जनरेट करेंगे, वहाँ से फिर कोरबा या C++ कोड जो भी है वो हम जनरेट करेंगे। तो जनरली जब हम एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो we perform two kinds of transformation. One is called model to model transformation, which transforms PIM into one or more PSMs. यहाँ पे ये PIM टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है, इट ओनली कैरीज डोमेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिसीजन होता है और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल जनरेट होता है, और फिर एक्चुअल थर्ड लेवल पे वंस वी परफॉर्म मॉडल टू कोड ट्रांसफॉर्मेशन तो हम एक्चुअल उस टेक्नोलॉजी का कोड जनरेट कर देते हैं। तो जनरली दिस इज टू लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशंस। Let's see another trivial example. This is actual example of a PIM. For example, इसमें दो क्लास डायग्राम नजर आ रही हैं आपको। एक काउंट क्लास डायग्राम है with a stereotype business entity, then there is a customer class with stereotype business entity. तो ये एक दो क्लास पे बेस करता हुआ हमने एक PIM बनाया है, और ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अकाउंट एंड कस्टमर आर डोमेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियल डोमेन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इसलिए हमने इस पे बिजनेस एंटिटी मेंशन किया हुआ है। अब हम मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन करके PSM बना सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम एंटरप्राइज जावा बीन बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करें। तो हमने जो PSM बनाया है वो EJB एंटरप्राइज जावा बीन बेस्ड PSM जनरेट किया है। तो इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है EJB एंटिटी बीन, EJB एंटिटी बीन। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे हैं वो जो जनरेट हुए हैं वो EJB का कोड जनरेट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर क्रिएट हो गए हैं, और वो क्रिएट इसलिए हुए हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की लिखी है। जब ये PSM बन गया तो अब हम थर्ड एक और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मॉडल टू टेक्स्ट। ये मॉडल टू मॉडल थी पहली वाली, दूसरी मॉडल PSM में डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है PIMS के मुकाबले। हाँ, PIM के मुकाबले में टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डिटेल आ जाती है इसमें। अच्छा, PIM में टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हम डाल देंगे। अब हम वो वाले कॉन्सेप्ट डालने हैं जिन कॉन्सेप्ट से हम आगे फिर EJB स्पेसिफिक कोड जनरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल EJB बेस कोड जनरेट करना हो तो हमें इसमें इंटरफेसेस, होम इंटरफेस बनाने पड़ते हैं। तो ये होम अकाउंट होम नज़र आ रहा है, अकाउंट होम नज़र आ रहा है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं EJB बेस्ड प्रोग्रामिंग के। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स कोड जनरेट करने के लिए फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पहले हम जनरेट कर लेते हैं PSM लेवल पे, जो कि वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ये डोमेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पे। तो वो पहले हम जिन कॉन्सेप्ट्स को आगे फर्दर हमने कोड जनरेट करना है उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे फिर हमारे लिए फिर थर्ड लेवल सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे लिए कोड जनरेट करना, एक्चुअल कोड जनरेट करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक और देखें, ये फॉर एग्जांपल एक सिंपल PIM है हमारा, कस्टमर के कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब हम कहते हैं जी ये हम जावा क्लास में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पब्लिक विजिबिलिटी के साथ थे एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ अब ये प्राइवेट विजिबिलिटी के साथ एट्रीब्यूट्स जनरेट हो गए हैं। ये प्लस का मतलब होता है पब्लिक विजिबिलिटी, माइनस का मतलब होता है प्राइवेट विजिबिलिटी, और साथ ही हर एट्रीब्यूट के गेटर और सेटर भी जनरेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत डोमेन लेवल की थी, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल की कॉन्सेप्ट्स हमारे ऐड हो गए हैं जब हमने PSM बनाया। तो वी ऐड सम मोर इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स इन PSM। ठीक है, आई होप ये सर हमने इसको असेस करने के लिए बनाया ना, क्योंकि सर वो प्राइवेट थे ना। यानी वो तो ठीक है, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन को सामने रख के अब हमने ये इसको एनहांस कर दिया ना उस क्लास को। यानी हमने सोचा अच्छा इसको एक्सेस करना पड़ेगा, इसका मतलब है फिर गेटर सेटर भी डालने चाहिए।
लेकिन जब आप डोमेन लेवल पे आप चीज़ें बना रहे होते हैं तो उस वक्त आप ऑपरेशंस वगैरह पे ध्यान नहीं देते, आप ज़्यादातर उनके फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। आप कहते हैं ये कस्टमर है, उसका टाइटल होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब आप आपकी इम्प्लीमेंटेशन की थिंकिंग शुरू हो जाती है जब आप फर्दर आगे आते हैं। और फिर आप अगर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है तो फिर वो भी चीज़ आ जाएगी बीच में। तो अब बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड गेटर सेटर्स। ठीक है ना? सो जी, एनी क्वेश्चन? सो आई होप नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर कि एमडीए क्या चीज़ है। और एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये फॉर एग्जांपल देखिए, ऊपर एक डोमेन PIM बनाया हुआ हमने, इसमें 3 क्लासेस हैं। कस्टमर कैन हैव मैनी ऑर्डर्स एंड ऑर्डर कैन हैव 1 और मोर आइटम्स। ये कॉन्सेप्ट है डोमेन लेवल का। डोमेन लेवल कॉन्सेप्ट है कस्टमर, ऑर्डर, आइटम, दिस ऑल इज। तो हम कहते हैं जी इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल। अब हमने इम्प्लीमेंटेशन, हमने सोचा जी हमने जावा बेस इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो हमने क्या किया कि कस्टमर की इम्प्लीमेंटेशन आपको कस्टमर PSM फर्दर एनहेंस्ड है। एसोसिएशंस के भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन कस्टमर को ऑर्डर्स के नाम से ये क्लास विजिबल है। सर ये इंडिपेंडेंट मॉडल कैसे हो गया सर? ये डिपेंडेंट नहीं होगा सर? क्या मतलब समझे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर ये जो नंबर है और आगे जो नंबर है आइटम के अंदर जो एट्रीब्यूट है नंबर, आइटम, आइटम का लिखा, हाँ ये आइटम, हाँ क्या करें। तो सर ये तो उसकी डिपेंडेबिलिटी है ना सर ऑर्डर के ऊपर। नहीं, ये हम जैसे वो होता है ना, इसको कैसे रीड करते हैं, मैं बताता हूँ आपको ना इसको कैसे रीड करते हैं। कस्टमर, ये स्टैटिक का मतलब है मैनी, 1 का मतलब 1, तो हम इसको रीड ऐसे करेंगे, अ कस्टमर कैन कैन ऑर्डर प्लेस, मैनी ऑर्डर्स। कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। यस ठीक हो सर। गया? एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम कहते हैं जी एन ऑर्डर मस्ट हैव 1 कस्टमर। 2 कस्टमर एक ऑर्डर नहीं दे सकते। कोई भी ऑर्डर जो है वो किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर के साथ अटैच होना चाहिए या लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि हर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप देंगे तो उसमें कोई ना कोई आइटम होनी चाहिए। तो कम से कम एक आइटम होनी ज़रूरी है कोई भी ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तो। एक ओके से सर, ज़्यादा ये भी। आइटम के अंदर सर नेम भी आ रहा है, कस्टमर में भी नेम आ रहा है सर। वहाँ पे सर ये प्राइमरी की होगी या ये नेम फॉरेन की कस्टमर होगी का सर? नहीं है, ये नेम कस्टमर का नहीं ये है, सर ये किसका नेम है सर, ये बता दें। आइटम का नेम है ना ये। आइटम का नेम है, ठीक हो गया आइटम सर। का नेम है, आइटम का नंबर है, आइटम की प्राइस है, ये ऑर्डर का नंबर है, ऑर्डर डेट है, ये कस्टमर है। ठीक हो यानी कि वो जो चीज़ें आ रही है ना उसके अंदर वो उसकी अपनी कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया ब- सर। हाँ ये है। अब ओके। यहाँ पे एसोसिएशंस हैं। अब हमने सोचना है जब हम PSM बना रहे हैं कि यार एसोसिएशन को कैसे हैंडल करें। क्लास जब क्रिएट करते हैं तो एसोसिएशन तो नहीं होती ना, उनको एज एन एट्रीब्यूट हैंडल करना होता है हमने। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑर्डर्स है तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कस्टमर को ऑर्डर्स की क्लास विजिबल है ऑर्डर्स नाम के साथ, और ऑर्डर को कस्टमर की क्लास, कस्टमर रोल, ये रोल कहते हैं इसको हम, कस्टमर रोल, ऑर्डर रोल। तो कस्टमर को ऑर्डर्स क्लास ऑर्डर के नाम से विजिबल है, ऑर्डर को कस्टमर की क्लास कस्टमर नाम से विजिबल है। इस ऑर्डर को आइटम क्लास आइटम्स के नाम से विजिबल है, लेकिन आइटम क्लास कांट सी, आइटम को ऑर्डर क्लास विजिबल नहीं है, क्योंकि ये बाय यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन है। ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन का। अब जब हमने PSM बनाया तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जी ये ऑर्डर की एसोसिएशन को मैं एट्रीब्यूट में कैसे जाहिर करूं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर का एक एट्रीब्यूट बनाया। और क्योंकि एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं तो मैंने एक सेट क्रिएट किया, ऑर्डर टाइप का सेट क्रिएट कर लिया, क्योंकि एक सेट में बहुत से ऑर्डर हो सकते हैं। और यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि एक कस्टमर के बहुत से ऑर्डर हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि कस्टमर के अंदर मैंने एक ऑर्डर का एट्रीब्यूट बनाया जिस जो विच कैन होल्ड मल्टीपल ऑर्डर्स। इसी तरह ऑर्डर के अंदर
एक मैंने सेट बनाया जो विच कैन होल्ड मल्टीपल आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आइटम हो सकती हैं। तो इसलिए ये थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें हमने एनहेंस किए हैं पीएसएम बनाते वक्त। इसी तरह गेटर सेटर भी जनरेट किए हमने, एसोसिएशंस को भी ट्रांसफॉर्म किया है इन एट्रीब्यूट्स। तो यानी कि हमने बेसिकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। पीएसएम में हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं ज़्यादा, प्रोसीजर्स ऐड करते हैं, गेटर सेटर ऐड करते हैं, एसोसिएशंस को हैंडल करते हैं। तो हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं जब पीएसएम में जा रहे होते हैं हम। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? चलें आगे देख। ठीक है, आगे जस्ट टू समराइज एक और आइडिया देखें। जैसे अब आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि जी ये डेटाबेस में हमने वो डेटाबेस जनरेट करेंगे या क्या करेंगे पीआईएम से। अब देखें उसका आंसर यहाँ पर आ रहा है कि हम जनरली कर क्या रहे होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 टियर एप्लीकेशन बनानी है तो इसका मतलब है वी हैव टू क्रिएट कोड फॉर ऑल द 3 टियर्स सेपरेटली। तो ये डेटा टियर नज़र आ रही है आपको, बिजनेस टियर नज़र आ रही है और आपको प्रेजेंटेशन टियर नज़र आ रही है। तो डेटा टियर का मतलब है कि वी नीड सम एसक्यूएल सोर्स कोड, एसक्यूएल कोड, कोई हमें एसक्यूएल आ जाए तो उससे हम डेटाबेस उसका स्कीमा मिल जाए, जनरेट हो जाए, उसका एसक्यूएल का कोड आ जाए ताकि हम उससे डेटाबेस क्रिएट कर सकें। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमें ईजेबी का सोर्स कोड मिल जाए। ईजेबी में अंदर जनरली बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट की जाती है जावा में, बिजनेस लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड इन ईजेबी। इसी तरह प्रेजेंटेशन टीयर में हम जनरली क्योंकि जीएसपी का कोड जनरेट कर सकते हैं या एचटीएमएल कोड हो सकता है या कोई और भी प्रेजेंटेशन लेवल का कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कोड तो अगर हमें ये जीएसपी का कोड मिल जाए, हमें ईजेबी का कोड मिल जाए और आपस में वो लिंक भी हों और सोर्स कोड भी हों तो हमारी 3 टियर एप्लीकेशन बन सकती है। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ वेब पीएसएम। ये एक सिंगल पीआईएम है। इस पीएम से हमने 3 तरह के पीएसएम जनरेट किए हैं। एक वेब पीएसएम जनरेट करना है हमने, एक हमने ईजेबी कंपोनेंट पीएसएम जनरेट करना है, एक हमने रिलेशनल पीएसएम जनरेट करना है। तो एक ही पीआईएम से हम 3 पीएसएम जनरेट करेंगे बिकॉज वी नीड 3 टियर एप्लीकेशन। और फिर वहां से फर्दर हमारा हर लेयर का, हर टियर का हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। सर और ये इसी तीनों तरह जो टायर हैं सर वो इंडिपेंडेंट है ना था यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक हो सेपरेट गया। होते हैं ना, लेकिन है कि इनके क्योंकि ये एक सिंगल सोर्स से आइटम जनरेट हो रही हैं तो इनके हम कम्युनिकेशन ब्रिजेस भी साथ ही जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर सोर्स सिंगल है तो हम वहीं पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसने कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज? तो इसको मैंने सारा चीज़ें ऐसे ऐसे बिल्ड करके आपको 3 टियर पे ला के अभी आपको फाइनल बता दिया कि कैसे ये पीआईएम पीएसएम और सो और फिर आगे कोड्स वगैरह जनरेट होते हैं। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर। और एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये एक और है, जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि ये पीएसएम है, ये पीआईएम है और एक पीआईएम से हमने मल्टीपल पीएसएम जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये पीआईएम को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी जो पीआईएम था वो इट कंसिस्टेड ऑफ वेरियस क्लासेस। कितनी क्लासेस हैं? 1 2 3 4 5 5 क्लासेस हैं। तो 5 क्लासेस पे बेस कर रहा था पीआईएम और ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर दिए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं कहता हूँ जी मैं रिलेशनल पीएसएम जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच में ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिखूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल वो ये हो सकते हैं जी, हर एवरी क्लास ईच क्लास विल बी मैप टू अ टेबल। दिस कुड बी वन रूल जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे हम। दूसरा रूल ये हो सकता है कि जी सिंपल डेटा टाइप कैन बी मैप डायरेक्टली टू अ कॉलम इन द टेबल। तो एक क्लास से टेबल बनेगा तो क्लास के अंदर हर एट्रीब्यूट का एक एक कॉलम बनेगा। ये रूल हो सकता है। ये आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कि किस तरह क्या रूल्स बना सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं जी अगर डेटा टाइप, if data type in class, but if the data type is a class, this class will be mapped to a table itself. क्योंकि अगर आपने डेटा टाइप कोई प्रिमिटिव टाइप है, सिंपल डेटा टाइप है, फिर तो वो उस टाइप का कॉलम बन जाएगा। लेकिन अगर वो डेटा टाइप किसी क्लास टाइप का है तो उस क्लास का भी एक टेबल आपको रिलेशनल डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके साथ आपको फॉरेन की, प्राइमरी की आपस में लिंक करनी पड़ेगी। इसी तरह सो द कॉन्सेप्ट इज स्मॉल चेंजेस इन पीआईएम। पीआईएम में थोड़ी सी भी अगर हम चेंजेस करते हैं, इट कैन हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन रिलेशनल मॉडल। फॉर इंस्टेंस, चेंजिंग टाइप ऑफ एट्रीब्यूट in PIM from simple data type to a class data type means introducing a new table and a foreign key in the corresponding table. तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखी हुई होंगी, तो वो अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी, एक PIM है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, एक और PIM है उसमें डेटा टाइप डिफरेंट है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का PSM जनरेट हो जाएगा because of the structure of PIM, because we have written the transformation for that. ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह का एक रिलेशनल PSM जनरेट कर दिया। एक तरह आपको नजर आ रही है कि एक तरह की, ये इसको कौन सी डायग्राम कहते हैं सर? एंड ER डायग्राम कहते हैं। ER डायग्राम। एक तरह की रिलेशन ये समझ लें कि ER डायग्राम एक तरह की जनरेट होगी। तो ER डायग्राम इज अ काइंड ऑफ PSM। हमने क्लास से एक ER डायग्राम जनरेट किया। अब ER डायग्राम से जब हम SQL जनरेट करेंगे, दैट विल बी थर्ड लेवल। दिस इज P मॉडल टू मॉडल। और इसके बाद हम SQL का, अगर हमारा वो पूरा कोड जनरेट हो जाता है, क्रिएट फ्लान टेबल, अगर आप SQL पढ़ी होगी लेवल आदमी आपने, तो आप पूरा स्कीमा जनरेट हो जाता है। उसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। तो वो दैट विल बी मॉडल टू टेक्स्ट, ताकि उसका एक टेक्सचुअल फॉर्म में हमें पूरा SQL कोड मिल जाए फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। That will be model to text transformation. This is an example of model to model transformation, that is from PIM to PSM. So this ends with today's lecture. I hope you would have enjoyed this lecture. Any question from the whole lecture? बताएं जी, कोई फौरी कमेंट है लेक्चर पे तो प्लीज जरूर शेयर करें। और कोई है तो बताइए। कोई नहीं, सारे सोए पड़े हैं। सर क्लियर है सर, ये नए स्टूडेंट कुछ सब क्लियर है। कोशिश की है मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। चले ठीक है, दैट्स गुड। और बाकी है कि LMS पे रजिस्टर होना है आपने, और अपने आप को रजिस्टर आपने करना है कलम पे अटेंडेंस लगनी है। और सर कलम पे हमने खुद रजिस्टर करना है, जहाँ हमने जो कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे हैं सर, वो डिपार्टमेंट खुद ही करेगा रजिस्टर? डिपार्टमेंट ने करना है, आपको आपने नहीं डिपार्टमेंट करना। करेगा? शायद करेंगे, लेकिन आपने नज़र रखनी है कि आप रजिस्टर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आज की अटेंडेंस का भी पता नहीं, कोई तरीका होता है, मेरे ख्याल डाउनलोड हो जाती है आपकी टीम से। 23 स्टूडेंट्स आर देयर। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।